जी स्लाइड शेयर हो गई है। Yes, sir. Yes, sir. ओके जी। सो द थर्ड पैटर्न इज पब्लिश सब्सक्राइब पैटर्न. You may consider it a second pattern which has come out of MOM technology, I know, which is a middleware technology, and it is publish subscribe pattern. As you can see that there is a topic in between instead of a queue, and there is a publisher, and there might be multiple subscribers. And the important features of publish subscribe pattern are that it allows many to many messaging. Published messages are sent to all the subscribers who are registered with the topic, and many publishers can publish on the same topic, and many subscribers can listen to the same topic. And it also has a configurable quality of service that in addition to non-reliable and reliable messaging, the underlying communication mechanism may be point to point or broadcast or multicast. तो ये बेसिकली नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट्स हैं. पॉइंट टू पॉइंट आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं नेटवर्क के, आप ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं in which you send your information to all the nodes, and multicast. In multicast you can send your information to specific nodes at over the network, and multicast is in this context is more efficient than broadcast. In point to point we are required to send one message to each subscriber separately. In broadcast we send one message, but it is received by all, but the spread of broadcast is so much that generally it chokes the network. On the other hand, multicast, in multicast you can send one message to specific clients. So this is in addition to the issues of reliability and non-reliability, which is already built in MOM technology. And loose coupling is again fundamental because publisher and subscribers are not directly connected. There is no direct binding between publisher and subscriber. So these three are the fundamental features of publish subscribe pattern. Similarly, we can also analyze the quality attribute of this pattern. The important aspect is that we if we want to achieve availability, we want to improve our failure handling, then we are required to replicate the topics, because here there is the concept of topic instead of a queue. And modifiability is again good because of loose coupling between we can add any new publisher or subscriber anytime. And changes to format of a message published may cause changes to subscriber implementation. So it means, for example, I have subscribed to YouTube channel, any channel, but if there is some changes in the format of YouTube, then perhaps I might have to install a new application of YouTube so that I can handle the any changes of the messages. So such type of issues may come across in modifiability. And for if we want to achieve performance, we may resort to multicast, because in point to point uh, each one message is sent for each point, each node, but in multicast the most efficient is multicast, so that we can resort to multicast mechanism of data transmission to achieve better performance. And as far as scalability is concerned,
Obviously, by replicating topics, we can achieve scalability. We may create clusters of servers of topics. With this, we can handle high message volumes and throughput. And multicast and broadcast solutions scale better as compared to point counterparts. Okay, now we come to the fourth architectural pattern, that is broker pattern. Again, it is you can see it is based on broker middleware technology. There is a broker in middle, and there might be multiple senders, multiple receivers. So the salient features of this pattern is that it provides hub and spoke architecture. Broker is hub, and these senders, multiple senders and multiple receivers are spokes. The broker acts as a messaging hub, and sender receivers connect as spokes. Performs message routing. So it has inbuilt capability of message routing, message transformation, etc. The broker embeds processing logic to deliver message received in out of port to any output port. Then it performs message transformation. Broker logic transforms the source message type received on input port to the destination message type. The point is that routing and transformation, as we saw in broker middleware, those both routing and transformation important features are supported by the broker pattern. So if you want to achieve higher availability, then brokers must be replicated. And the same broker replication will also help us to improve our failure handling capability. Brokers, as far as modifiability is concerned, brokers separate the transformation and message routing logic from the sender and receiver. And therefore, it enhances the modifiability because you have to make changes at a single point, that is hub broker. And again, performance can be a problem here. Brokers can potentially become a bottleneck because it is acting as a hub, especially if they must service high message volumes and execute complex transformation logic. Their throughput is typically lower than simple messaging with reliable delivery. तो जो MOM जो टेक्नोलॉजी है, इट इज सिंपलर टेक्नोलॉजी, लेकिन इसके अंदर क्योंकि कम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन और लॉजिक वगैरह लगी होती हैं, तो इसकी परफॉर्मेंस रिलेटिवली उससे कम होती है. एंड इफ यू वांट टू अचीव स्केलेबिलिटी, देन clustering is the option. We may cluster our brokers instances, which makes it possible to construct systems to scale to handle high request loads. So this is these are some features of broker pattern. And the last one is process coordinator pattern. As you can see that it is the brain of process coordinator is the brain. Process coordinator has to make use of various servers, and process coordinator has to involve them. The whole logic is placed here, so it acts as a brain. We will request to start process request will be sent to the process coordinator. It will interact with some logic with various servers at various steps of the process, and at the end result will be sent forward to the next step. So the important features of process coordinators are that it has a process encapsulation. It encapsulates the whole process knowledge. The process coordinator encapsulates the sequence of steps needed to fulfill business process. The sequence can be arbitrarily complex.
Then there is a loose coupling. Server components are unaware of their role in the overall business process and of the order of the steps in the process. अब सर्वर को नहीं पता कि एक बड़ी गेम में ये एक कैसे इनकॉर्पोरेट हो रहा है। जैसे हुकूमतें और बड़े बड़े मुल्क हमें बड़ी गेम में इन्वॉल्व कर लेते हैं, इसी तरह ये बड़ा बिजनेस प्रोसेस कोऑर्डिनेटर बड़ी गेम खेलता है, लेकिन छोटों को कोई पता नहीं कि वो इस पूरे ओवरऑल प्रोसेस में उनका क्या रोल है, किस स्टेप्स पे वो इन्वॉल्व हैं, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है। दे डोंट नो, दे इवन डोंट नो who all are their siblings which are involved in it। ठीक है, तो ये इस तरह इसको समझा जा सकता है। एंड देन फ्लेक्सिबल कम्युनिकेशन बिटवीन कोऑर्डिनेटर एंड सर्वर्स कैन बी सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। तो ये जो कम्युनिकेशन है इसके दरमियान में आप दोनों तरह की कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं, एसिंक्रोनस एज वेल एज कम्युनिकेशन। किसी सर्वर को आपने निकालना है, निकाल सकते हैं, ऐड करना है, कोई मल्टीपल सर्वर्स ऐड करने हैं एज पर द लॉजिक ऑफ बिजनेस कोऑर्डिनेटर, ऑल सच फ्लेक्सिबिलिटी is available. So if we do some analysis of the process coordinator, so as far as availability is concerned, this process coordinator may have a single point of failure because it is a single hub. Coordinator is a single hub, hence we are required to do some replication to improve our availability as well as failure handling। फेलियर हैंडलिंग में और भी इश्यूज हैं, बिकॉज द लॉजिक इज कम्प्लेक्स, वी माइट हैव टू रोल बैक वेरियस एग्जीक्यूटेड स्टेप्स, सो दैट इज अ कम्प्लेक्स टास्क। इट कैन अकर एट एनी स्टेज इन द बिजनेस प्रोसेस। Failure of later steps in the process may require earlier steps to be undone using compensating transactions। रिवर्ट बैक करना पड़ सकता है आपको, तो इसलिए इसमें फेलियर हैंडलिंग जो है इट रिक्वायर्स अ केयरफुल डिज़ाइन टू इंश्योर दैट डेटा इज मेंटेन्ड बाय द सर्वर, इट रिमेन्स कंसिस्टेंट, कोई डेटा में इनकंसिस्टेंसी ना आ जाए। तो लेकिन है कि फेलियर बाकी टेक्नोलॉजी के मुताबिक फेलियर हैंडलिंग को मैनेज करने की कैपेबिलिटी भी इसी टेक्नोलॉजी उसी पैटर्न में सबसे ज़्यादा है। Process modifiability is enhanced because process definition is encapsulated in the coordinator process। वजह उसकी यह है कि सर्वर्स कैन चेंज देयर इम्प्लीमेंटेशन, जितने भी सर्वर्स से कनेक्टेड हैं किसी सर्वर को भी चेंज कर सकते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी चेंज कर सकते हैं। Such issues are possible। As far as performance is concerned, to achieve high performance, the coordinator must be able to handle multiple concurrent requests and manage the state of each as they progress through the process. Also, performance of any process will be limited by the slowest step, namely the slowest server in the process। तो अगर सीक्वेंस में सीरीज में मल्टीपल प्रोसेसेस सर्वर्स लगे हुए हैं, तो जो सबसे सीरीज में स्लो सर्वर होगा पूरे के पूरे प्रोसेस की परफॉर्मेंस उससे डिटरमिन होगी, बिकॉज इट विल क्रिएट इम्पैक्ट। तो अगर सीरीज सर्किट का कॉन्सेप्ट आपको पता हो तो सीरीज में जो है वो सीरीज में इम्पैक्ट जो फिर अगर करंट फ्लो का जैसे हम कहते हैं जी इम्पैक्ट पड़ता है तो सब पे पड़ता है, इसी तरह प्रोसेस फ्लो का इम्पैक्ट सीरीज में क्योंकि आ रही होंगी, सीक्वेंस में आ रही होती हैं सर्वर्स, तो जिस सर्वर की परफॉर्मेंस सबसे कम होगी वही परफॉर्मेंस सबकी हो जाएगी। सो वी नीड टू बी केयरफुल इन चूजिंग द सर्वर टेक्नोलॉजीज एज वेल एज द टास्क विच आर required to be performed by each server, so their performance is required to be fine-tuned। As far as scalability is concerned, the coordinator can be replicated to scale the application। So it ends, so up till now what we have been able to see that we were basically discussing the architectural design process
And in this design process, uh, we said that the first step is to choose the architectural framework, and we can choose the framework from any standardized patterns. So we saw 5 different patterns as an exemplar. And once we choose the pattern, then next step is to allocate components so that our application should we have to fit in those components in by uh, which can play a role in a particular pattern. So as once we go to this step, let's see how we can do that. In order to allocate the components, you need to identify the major application components and how they plug into the framework. So first of all is that we have to identify the major components. Then we have to identify the interfaces. Then we have to identify the responsibilities. So there are different issues. पहले कंपोनेंट आइडेंटिफाई करेंगे, फिर कंपोनेंट के जो उनके जो कंपोनेंट्स आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे तो उनके इंटरफेसेस को हम आइडेंटिफाई करेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. जैसे मैंने आपको बताया था कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम 2 एस्पेक्ट्स में देख सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नोइंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डूइंग. तो दोनों तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हमें देखना होगा. And then we have to identify the dependencies between the components, or we should try to minimize the dependencies between the components. उसका फ़ायदा ये होगा कि we will achieve low coupling and high cohesion. And then we have to identify partitions in the architecture that are candidates for distribution over servers and networks. तो हम पार्टीशन करेंगे ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि किस पार्ट को हम किस सर्वर पे डिप्लॉय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा. तो अगर हमने इफेक्टिवली पार्टीशन कर लिया अपने नेटवर्क को, डिफरेंट पार्ट्स उसके अच्छे तरीके से हमने कर लिए, तो हमारे लिए डिप्लॉयमेंट भी आसान हो जाएगी. सो देयर आर फ्यू गाइडलाइंस for us, so to for once we are allocating the components. First of all, we should strive for loosely coupled solution. We should strive for loosely coupled solution. ये ग्रेस पैटर्न में ये कॉन्सेप्ट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं. We are required to minimize dependencies. We should strive for loosely coupled solution. Remember, every time you change something, you have to retest it. तो अगर डिपेंडेंसीज, अगर आपकी एक कंपोनेंट की डिपेंडेंसी है 4 कंपोनेंट में कंपोनेंट पर, तो अगर इस कंपोनेंट को आप चेंज करेंगे तो बाकी इस कंपोनेंट को भी रीटेस्ट करेंगे और बाकी 4 कंपोनेंट्स को भी रीटेस्ट करना पड़ेगा. तो आपकी रीटेस्टिंग एफर्ट बढ़ जाती है. जब आप डिपेंडेंसी बढ़ाते हैं तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है रीटेस्टिंग की. QA कॉस्ट गेट्स बहुत ज़्यादा हो जाती है, टाइम कंज्यूम होता है ज़्यादा. Secondly, design components that are encapsulated, that is highly cohesive. They have highly cohesive set of responsibilities. What is cohesion? Cohesion is measure of how well parts of the component fit together. Strong cohesion limits many types of changes to a single component, minimizing maintenance and testing efforts. और साथ ही हमने पढ़ा था कि आपकी कपलिंग भी मिनिमाइज हो जाती है हाई कोहेजन के रिजल्ट के तौर पे, एज अ रिजल्ट ऑफ हाई कोहेजन. देन आइसोलेट डिपेंडेंसीज ऑन मिडलवेयर एंड एनी कॉर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजीज. इट विल हैव मिनिमम डिपेंडेंस ऑन स्पेसिफिक मिडलवेयर और कॉर्ड्स टेक्नोलॉजी. तो आइसोलेट डिपेंडेंसीज का मतलब है कि जैसे हमने ग्रेस पैटर्न में पढ़ा था कि अगर डेटाबेस is an example of COT,
बिकॉज आप ओरेकल यूज़ करते हैं या कमर्शियल ऑफ द शेल्फ कोई डेटाबेस टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, तो आप जो आप ऑफ द शेल्फ कॉर्ड्स उठा रहे हैं उसके साथ आपकी एप्लीकेशन की डिपेंडेंसी कम से कम होनी चाहिए। और इसमें हम डिफरेंट उसके कॉन्सेप्ट हमने देखे थे ग्रेस पैटर्न में, तो सेम इज हेयर। ये नहीं कि सारे के सारे कंपोनेंट्स की डिपेंडेंसी आप कॉर्ड्स पे बनाएं, कोशिश करें कि आपका कॉर्ड्स के साथ डील करने वाला कंपोनेंट एक ही हो, ताकि आपकी उन पे डिपेंडेंस आपके कंपोनेंट्स की कम से कम कंपोनेंट्स की डिपेंडेंस हो कॉर्ड्स पर। देन यूज डीकम्पोजिशन टू स्ट्रक्चर द कंपोनेंट हायरार्की। जितनी हम कंपोनेंट हायरार्की अच्छी बनाएंगे उतना हमारा आर्किटेक्चर मेंटेनेबल होगा। Minimize calls between components. This is related to the coupling, as these can prove costly if components are distributed. हाँ, अगर आपके कंपोनेंट्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, डिफरेंट नेटवर्क नोड्स पे हैं, तो आपकी अगर कंपोनेंट्स के दरमियान डिपेंडेंसी ज़्यादा होगी तो आपकी नेटवर्क जो नेटवर्क पे डेटा ट्रेवल कर रहा होगा और नेटवर्क जो चोकिंग होगी वो ज़्यादा होगी। तो इसलिए आपकी कंपोनेंट्स के कॉल को मिनिमाइज करना चाहिए आपको वंस यू आर टेकिंग सम डिज़ाइन डिसीजंस। और वो ऑब्वियसली जितनी कोहेजन होगी उतनी आपकी कॉल्स भी कम होती जाएंगी। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल टू फर्दर apply these concepts. So this is an example architecture of an ordering system. आपको नजर आ रहा है कि you may get some order. फॉर एग्जांपल कोई भी नया ऑर्डर आता है, हम कहते हैं जी ये इस डेटाबेस में आ जाएगा। उसके बाद ये प्रोसेस इनिशिएट हो जाएगा, ऑर्डरिंग इनपुट वाला रीड करेगा नए ऑर्डर को, उसको पहले वैलिडेट करेगा कि ऑर्डर ठीक भी है कि नहीं ठीक है। ठीक है, आप कहते हैं जी ऐसा ऑर्डर जो कि आगे प्रोसेसेबल भी है कि नहीं है। सो वी विल वैलिडेट द ऑर्डर, वी विल आल्सो वैलिडेट द कस्टमर प्रोफाइल, कस्टमर सिस्टम से कि ये जेन्युइन कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया है या ऐसे ही किसी रोबोट ने ऑर्डर प्लेस कर दिया। सो सच काइंड ऑफ वैलिडिटी decisions are to be taken at this point. If there is some validation error, then error log will be maintained. जब वैलिडेशन हो जाएगी हमारी तो फिर ऑर्डर इनपुट वाला क्या करेगा, यानी ऑर्डर इनपुट में दो काम कर लिए, एक तो ऑर्डर रीड किया, फिर उसने ऑर्डर को वैलिडेट किया। अगर अभी भी ये भी ठीक है, वैलिडेशन हो गई है, तो फिर ये ऑर्डर को राइट करेगा थ्रू अ स्टोर कंपोनेंट्स टू द ऑर्डर सिस्टम। ऑर्डर सिस्टम में जब ऑर्डर आ जाएगा उसके बाद फिर ये ऑर्डर को एक ईमेल भेजेगा ईमेल सर्वर पे कि जी आपका ऑर्डर जो है हमने रिसीव कर लिया है एंड दिस ऑर्डर इज नाउ गोइंग टू बी प्रोसेस्ड। सो इट विल सेंड द ऑर्डर टू द ऑर्डर क्यू। ऑर्डर क्यू में इसलिए डाल रहे हैं हम ताकि ऑर्डर सर्वर जब भी अवेलेबल हो तो वो जो सेंड ईमेल वाला कंपोनेंट है, क्योंकि सीक्वेंशियल ईमेल आपने भेजनी है ऑर्डर्स की, तो आपने ऑर्डर क्यू लगा दिया ताकि जैसे ही ईमेल सर्वर अवेलेबल हो तो वो अगला ऑर्डर फेच करके उसको प्रोसेस कर दे, वो ईमेल सर्वर को भेज दे ताकि ईमेल सर्वर आगे ईमेल कर दे। सो इन ऑर्डर टू अचीव सम एसिंक्रोनस कनेक्टिविटी वी हैव प्लेस्ड द ऑर्डर क्यू, ताकि इसको ऑर्डर प्लेस अगर ईमेल सर्वर बिजी है तो ये ना हो कि ऑर्डर प्लेस ना कर सके, ऑर्डर का इंफॉर्मेशन कम से कम वो डाल दे इसके अंदर। तो दीज येलो आर द एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स। कस्टमर सिस्टम था उनके पास, ऑर्डर सिस्टम है उनके पास और ईमेल सर्वर भी है उनके पास। नए कंपोनेंट्स जो हम बनाना चाह रहे हैं दैट इज ऑल वाइट आर न्यू कंपोनेंट्स विच आर planned. So this is an example of an architecture. You can see that these are broader components, 7-8 components, which are depicting the whole story, what is about and depicting what is happening here. These are databases and this is a persistent queue. Okay, now
just a formal discussion on it. Order input is responsible for accessing the new orders, पहला काम, and encapsulating the order processing logic जो कि इसके अंदर होगी, and writing to the order queue जो कि ये है order queue, इसमें write करेगा, ये सारा काम इसका है. फिर validate वाला component क्या करेगा? It encapsulates the responsibility of interacting with the customer system to carry out validation. तो ये कस्टमर सिस्टम से इंटरेक्ट करेगा वैलिडेट करने के लिए कि कस्टमर वैलिड कस्टमर है कि नहीं है, और मे बी उसकी क्रेडिट हिस्ट्री देखे कि उसका कोई क्रेडिट कार्ड तो नहीं ब्लॉक हुआ या कोई भी एनी कस्टमर वेरिफिकेशन का जो भी मैकेनिज्म हो सकता है. एंड राइटिंग टू द एरर लॉग्स इफ ऑर्डर इज इनवैलिड. ऑर्डर इनवैलिड है तो एरर लॉग मेंटेन करेगा. Then the store component, it is responsibility. Its responsibility is to interact with order system to store order data. तो ये order data ये वाला component डालेगा existing system में. Okay, and the send email component क्या करेगा? It removes the message from the order queue, this one, and formats an email message and send it via email server. It encapsulates all the knowledge of the email format, email server access. तो ये सारा कुछ इसके अंदर होगा send email component में. अब ये केस स्टडी है. अभी आपने ये समझे कि हमने एक आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया है एक एप्लीकेशन का. ऑर्डरिंग सिस्टम एप्लीकेशन है और हमने उसका एक आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया है. हर कंपोनेंट की हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफाइन की हैं कि जी कौन सा कंपोनेंट क्या करेगा. कुछ एग्जिस्टिंग कंपोनेंट है उनको हमने साथ इंटीग्रेट करना है, और ये वजह है. अब ये क्वेश्चन हो सकता है कि जी हमने ये क्यों यूज़ किया है यहाँ पे. तो उसका आंसर यही है कि ताकि अगर ईमेल कंपोनेंट बिजी है अपने प्रोसेसिंग में तो इसको वेट ना करना पड़े. ये फॉरगेट सेंड एंड फॉरगेट वाला सिस्टम किया हुआ है कि जैसे ही ऑर्डर आता है इसमें प्लेस कर दे, इसके बाद ऑर्डर इनपुट का काम ख़त्म है. वो फिर जब भी ईमेल सर्वर फ्री होगा तो इट कैन सेंड द ऑर्डर टू द कस्टमर के आपका ऑर्डर रिसीव हो गया एंड वी आर गोइंग टू प्रोसेस. वैलिडेट हो गया आपका ऑर्डर प्लेस कर दिया गया है एंड यू विल गेट योर आइटम्स बाय सच एंड सच डेट. तो इस किस्म की ये इसका रीज़न है. अच्छा जी, अब यहाँ पे जो हमने डिज़ाइन किया है वो ये डिज़ाइन किया है कि जी जो ऑर्डर इनपुट और वैलिडेट के दरमियान में जो कम्युनिकेशन होगी दिस विल बी सिंक्रोनस कम्युनिकेशन. और इस यानी कि ऑर्डर इनपुट वैलिडेट करेगा, जब उसको पता चल जाएगा वैलिडेशन हो गया तो फिर आगे चलेगा. सो हियर वी नीड अ सिंक्रोनस कम्युनिकेशन. और अगर एरर लॉग आ जाती है तो इट विल नॉट प्रोसेस फर्दर, स्टोर में ऑर्डर प्लेस नहीं करेगा. तो इसका मतलब है कि ये स्टेप का सक्सेसफुल वैलिडेशन होना ज़रूरी है हमारे लिए. ओनली देन वी कैन मूव टू द नेक्स्ट स्टेप. अगर ये वैलिडेशन हो जाती है सक्सेसफुल देन इट विल प्लेस द ऑर्डर इन द ऑर्डर सिस्टम एंड द थर्ड स्टेप, जब ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा फिर ये ऑर्डर क्यू में मैसेज देगा कि जी ये सारा काम आपका हो गया एंड नाउ योर ऑर्डर इज़ अंडर प्रोसेस. और तो ये अभी हमारा जो आर्किटेक्चर हमने सोचा है वो ये सोचा है, ये जो हमने कंसीव किया है. अब हम इसको एनालाइज करना चाहते हैं. वजह यह है कि इसको हमने द थर्ड स्टेप इज वैलिडेशन. तो फॉर एग्जांपल अगर हमने एक आर्किटेक्चर बनाया है, हमने दो काम कर लिए हैं, दैट इज़ वी हैव डिटरमिन्ड आर्किटेक्चर रिक्वायरमेंट्स, वी हैव made an architectural design as seen in the previous slide. Now we have to validate कि हमारे इस आर्किटेक्चर में कोई मसला तो नहीं है. वैलिडेशन करनी है. अब हमने वैलिडेशन कैसे करेंगे, this we are going to discuss now. So how we do validation. Aim of validation phase is to increase the confidence of the design team that architecture is fit for purpose. ठीक हो गया जी. हमारा कॉन्फिडेंस, क्योंकि अभी डेवलपमेंट तो हुई नहीं है,
तो इसलिए हम चाहते हैं कि आर्किटेक्ट का कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो कि वाकई जो मैंने डिज़ाइन बनाया है जब ये इम्प्लीमेंटेबल है. The validation has to be achieved within a project constraints of time and budget. The trick is to be as rigorous, as efficient as possible. अब ये नहीं हो सकता कि हम इम्प्लीमेंटेशन का इंतज़ार करें. इम्प्लीमेंटेशन का इंतज़ार करेंगे तो आप और उसके बाद कोई प्रॉब्लम निकल आई, आर्किटेक्चर में कोई फ्लॉ निकल आया, तो हमारी बहुत ज़्यादा कॉस्ट और बजट हमारा वेस्ट हो जाएगा. तो इससे बचने के लिए हम कोई ऐसा तरीका निकालना चाहते हैं कि हमारी वैलिडेशन आर्किटेक्चर लेवल पे बिफोर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए. सो इट्स इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट. Validating an architecture design poses tough challenges because it's a design that can't be executed and tested. ये चैलेंज है कि इसको आर्किटेक्चर बना के हम इसे एग्जीक्यूट और टेस्ट नहीं कर सकते. Secondly, it may consist of new and COTS components that have to be integrated. अब कोई COT का कंपोनेंट ले लिया, आपको उसकी परफॉर्मेंस ना पता हो सकता है कंपनी ने थर्ड पार्टी ने क्लेम करे कि जी इसकी थ्रूपुट इतनी इतनी होगी, लेकिन आपने पहले यूज़ नहीं किया हुआ, तो यू विल नॉट बी श्योर. तो आप चाहेंगे कि टेक्नोलॉजी कोई नई टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेट करें, तब भी आप चाहेंगे कि उसको पहले चेक कर लें बाकी ये परफॉर्म वैसे करेगा कि नहीं करेगा अगर मैंने कोई कमर्शियल ऑफ द शेल्फ कंपोनेंट उठाया है. तो ये चीज़ें भी अगर हमने कोई डिसीजन किया है कॉर्ड्स का तो वो भी वैलिडेट करना ज़रूरी है कि वो प्रॉपर्ली इंटीग्रेट हो सकेगा, और वो जो हमारे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, कंस्ट्रेंट्स हैं, आर्किटेक्चरल जो हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको सब रिक्वायरमेंट्स मीट हो जाएंगी, कहीं फ्लॉ तो नहीं आ जाएगा. तो इस किस्म के क्वेश्चंस आएंगे आपके दिन में एज एन आर्किटेक्ट. So there are two main techniques. Manual testing of architecture using test scenarios. तो हम टेस्ट सिनेरियोज यूज करते हैं और मैनुअल टेस्टिंग करते हैं. इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज. एंड सेकंड इज कंस्ट्रक्टिंग अ प्रोटोटाइप दैट क्रिएट्स अ सिंपल आर्किटाइप ऑफ द डिजायर्ड एप्लीकेशन. तो जहाँ पे हमें शक हो कि जी ये पता नहीं परफॉर्म करेगा एज वी हैव डिज़ाइन, तो फिर हम उसके लिए स्पेसिफिक थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं, कोई टेस्ट केसेस लिख लेते हैं एज अ प्रोटोटाइप, ताकि हम उसको टेस्ट कर लें, वैलिडेट कर लें कि जो हमारे एजम्पशंस हैं वो ठीक हैं कि नहीं हैं. सो द एम इज aim of both is to identify potential flaws in the design so that they can be improved before implementation commences. It's cheaper to fix before build. Yeah. It's cheaper to fix before build. तो ये ऑब्वियस है, जितने जितना हम फिक्सेशन लेट करेंगे उतना हमारी कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है. So let's see how we perform the testing or validation through scenarios. Part of SCI ATM. ATM stands for Architectural Trade-off Analysis Method. It's part of SCI ATM Architectural Trade-off Analysis Method. It is specially designed method by Software Engineering Institute. It is known as ATAM. It involves defining some kind of stimulus, event or occurrence that will have an impact on the architecture, and working out how the architecture responds to this stimulus. आगे मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको. If the response is desirable, then the scenario is deemed to be satisfied by the architecture. And if response is undesirable or hard to quantify, then flaw or at least an area of risk in the architecture may have been uncovered. So let's see the example. So these are three examples of scenario.
as you can see, there are three columns. First one is quality attribute, then stimulus, and then response. तो stimulus को अब देखते हैं हम पहले. It is related to availability. अब हमने सोचा है कि जी द नेटवर्क कनेक्शन टू द मैसेज कंज्यूमर्स फेल्स. हमें कह रहे हैं जी अगर नेटवर्क कनेक्शन फेल हो गया तो फिर क्या होगा, हमारे आर्किटेक्चर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि इट विल हैव इम्पैक्ट ऑन द अवेलेबिलिटी. तो अब हमने उसका एक मेंटल, अपने एक्सपीरियंस की बेस पे हमने मेंटल एक एक्सरसाइज की और फिर हमने उसका रिप्लाई को हमने फॉर्मली लिखा है, टू मेक डॉक्यूमेंट किया है. हम कह रहे हैं कि जी मैसेजेस आर स्टोर्ड इन MOM सर्वर until connection is restored. ठीक है. अब ये इस पर्टिकुलर एग्जांपल की बात नहीं हो रही, हम वैसे एक जस्ट ये स्टिमुलस एक लिखा है. अब हम कोई भी जैसा आर्किटेक्चर होगा वैसी रिस्पांस होगी हमारी. इट इज़ जस्ट अ हाइपोथेटिकल रिस्पांस कि जी कनेक्शन फेल हो गया तो क्या बनेगा. तो अब मैं एक हाइपोथेटिकल हमने उसकी रिस्पांस बिल्ड की है कि जी क्योंकि मैसेजेस आर स्टोर्ड इन MOM सर्वर until the connection is restored, therefore messages will only be lost if server fails. अगर MOM सर्वर फेल हुआ तो फिर हमारा मैसेज लूज होगा बिफोर कनेक्शन कम्स बैक. तो इसलिए अगर वो कनेक्शन आएगा दोबारा तो फिर कंज्यूमर को हम मैसेज भेज सकेंगे. तो ये हमने एक रिस्पांस देखी है कि ये हमारे आर्किटेक्चर में, क्योंकि हमने MOM सर्वर यूज़ किया हुआ है, तो फिर इस किस्म का हमारा रिस्पांस होगा. लेट्स सी अनदर एग्जांपल ऑफ स्टिमुलस. Just a hypothetical example, it is related to modifiability. A new set of data analysis component must be made available in the application. तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी फ्यूचर में 2 साल के बाद एक नया डेटा एनालिसिस कंपोनेंट हमें ऐड करना पड़ सकता है. तो हमारा आर्किटेक्चर कैसे उसको हैंडल करेगा इस मॉडिफाइबिलिटी कंस्ट्रेंट को. तो एज पर एनालिसिस we say that the application needs to be rebuilt with new libraries and all the configuration files must be updated on every desktop to make the new component visible in GUI toolbox. तो हमें नज़र आ रहा है कि ये अगर मॉडिफाइबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो आर्किटेक्चर है या कोई भी है, ये अभी इस पर्टिकुलर एग्जांपल की मैं बात नहीं कर रहा, एक कोई हमने देखा है कि हमने क्योंकि डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाई थी तो हमें पूरी की पूरी एप्लीकेशन रीबिल्ड करनी पड़ेगी. हर डेस्कटॉप एप्लीकेशन के ऊपर हमें फ्रेश डिप्लॉयमेंट्स करनी पड़ेगी. तो ये बहुत मॉडिफाइबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आर्किटेक्चर हमने कंसीव किया हुआ था वो कोई इतना अच्छा नहीं है. हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी फॉर मेकिंग सम मॉडिफिकेशंस. Let's see another example of stimulus. It is related to the security aspects. We say that if no requests are received on a user session for 10 minutes, यानी कि यूज़र का एक सेशन हमने लॉगिन किया है और 10 मिनट्स तक कोई एक्टिविटी हमने परफॉर्म नहीं की, तो हमारा आर्किटेक्चर कैसे, एप्लीकेशन कैसे बिहेव करेगी. So the response is that system treats this session as a potentially insecure and invalidates the security credentials associated with the session. So user must be log in again to connect to the application. तो हमने ऑलरेडी ये चीज़ ज़हन में रखी हुई है कि अगर कोई एक्टिविटी नहीं होती फॉर 10 मिनट्स तो हमारा जो सेशन है वो एक्सपायर हो जाएगा. So our any hypothetical application is behaving in a proper way. Okay, let's have example of 2 more scenarios. For example, there is some architecture. We say that the supplier of the transformation engine goes out of business. हमने कोई एक इंजन थर्ड पार्टी से लिया था, कॉर्ड्स परचेज किया था, लेकिन वो अगर वो सप्लायर आउट ऑफ बिजनेस चला जाता है, सपोर्ट देनी बंद कर देता है, तो फिर क्या बनेगा. तो हमारी रिस्पांस ये है कि न्यू ट्रांसफॉर्मेशन इंजन मस्ट बी परचेज. ये काम करना पड़ेगा हमें. एंड एक्सट्रैक्ट सर्विस लेयर
that wraps the transformation engine component must be re-implemented. तो हमें एक जो एब्स्ट्रैक्ट सर्विस लेयर वाला जो हमारा कंपोनेंट होगा उसको हमें री इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा टू सपोर्ट न्यू इंजन। ठीक है, तो इसमें वो हमें एक री इम्प्लीमेंटेशन आएगी, हमारी इन्वॉल्व हो जाएगी अगर हमें ये ट्रांसफॉर्मेशन इंजन चेंज करना पड़ा तो। क्लाइंट कंपोनेंट्स ऑन द अदर हैंड विल नॉट बी अफेक्टेड एज दे ओनली यूज द एब्स्ट्रैक्ट सर्विस लेयर। तो क्लाइंट साइड पे उनको री इम्प्लीमेंटेशन नहीं करनी पड़ेगी, हमें हमारी री इम्प्लीमेंटेशन इन हाउस हमें करनी पड़ेगी। ओके, it's an important insight to the architecture. Let's see the final example, that is a scalability related example. The concurrent user request load doubles during 3 weeks of enrollment periods. तो अब हमारा अगर लोड डबल हो जाता है हमारा, तो क्या हमारा वो स्केलेबल है आर्किटेक्चर या नहीं? तो द आंसर which has been conceived is that application server is scaled out on 2 machine cluster to handle the increased request load. तो जो उसको 2 clusters पे लेके जाने की हमें हमारे आर्किटेक्चर के अंदर वो कैपेबिलिटी हमने रखी हुई है। सो वी विल मेक a 2 machine cluster to handle this scalability related stimulus. So this how we perform ATAM, architectural trade-off analysis. So let's apply this method on our order processing case study. So these are the 3 stimulus which we have conceived, and these may happen at any point in time. One is related to customer system, that is modifiability related stimulus. We say that if the customer system package application is updated to Oracle database, तो हो सकता है कि कस्टमर सिस्टम पहले किसी और डेटाबेस में हो, मे बी लीगेसी सिस्टम हो, कोई कोबोल बेस्ड सिस्टम हो। हम कहते हैं कि जी ये हो सकता है कि फ्यूचर में हमें इसे किसी RDBMS डेटाबेस पे लेके जाना पड़े, मे बी ओरेकल हो। तो क्या हमारा जो आर्किटेक्चर में हमने जो इस चीज़ का कैसे ये मामला हैंडल होगा, इसको हम बाद में देखेंगे कि कैसे हैंडल होगा, लेकिन एक ये सिनेरियो हमने सोचा है। एक और है रिगार्डिंग रिलायबिलिटी कि कस्टमर एंड ऑर्डर सिस्टम्स आर अनअवेलेबल। अगर ये कस्टमर सिस्टम अनअवेलेबल हो गया तो हमारा आर्किटेक्चर कैसे बिहेव करेगा, और अगर ऑर्डर सिस्टम अनअवेलेबल हो गया तो फिर ये हमारा सिस्टम कैसे बिहेव करेगा। क्या ये जो है कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, इसको हमने एनालाइज करने की ज़रूरत है हमें। इसी तरह ईमेल सर्वर है कि अगर द ईमेल सर्वर फेल्स, अगर ये ईमेल सर्वर फेल हो जाता है तो उस वक्त फिर हमारा जो आर्किटेक्चर है, एप्लीकेशन जो है वो कैसे बिहेव करेगी। सो वी नीड आंसर्स टू दीज स्टिमुलस हमने आइडेंटिफाई किए हैं जो कि विच मे अफेक्ट the design of our overall architecture, and now we have to find the answers keeping in view our architectural design. So let's see the 3 stimulus. One is that customer system package application is updated to Oracle database. हम कह रहे हैं कि जी जो वैलिडेट कंपोनेंट मस्ट बी रिटर्न टू इंटरफेस टू द ओरेकल सिस्टम। यानी कि पीछे अगर मैं पिछली स्लाइड पे जा रहा हूँ वापस, हम ये कह रहे हैं कि जी अगर आपने ओरेकल यहाँ पे लेकर आए तो फिर आपको ये वाला कंपोनेंट जो वैलिडेट कंपोनेंट है ये वाला आपको री इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। हमारा आर्किटेक्चर डिज़ाइन ये कहता है। सेकेंड है कि हमारा ईमेल सर्वर फेल हो जाता है तो क्या इम्पैक्ट आएगा। द मैसेज बिल्ट अप ऑन द ऑर्डर क्यू until email server restarts. Messages are sent by the send email component to remove the backlog and order processing will not be affected. तो हम ये कह रहे हैं कि जी अगर ये ईमेल सर्वर फेल हो जाता है तो हमारी ऑर्डर प्रोसेसिंग इम्पैक्ट नहीं होगी, उस पर इम्पैक्ट नहीं आएगा क्योंकि ऑर्डर सिस्टम में हमारा डाटा जा चुका होगा, तो ऑर्डर सिस्टम की प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी। हाँ, लेकिन हमारे जो क्लाइंट को हमने
फीडबैक देनी है कि आपका ऑर्डर प्लेस हो गया है, उसमें डिले आ सकता है, लेकिन ऑर्डर प्रोसेसिंग हमारी उस पर इम्पैक्ट नहीं आएगा। ये क्योंकि जैसे ही ये ईमेल सर्वर अवेलेबल होगा, विल ये कंपोनेंट सेंड ईमेल कंपोनेंट फेच करेगा मैसेज और इट विल सेंड द मैसेज टू द ईमेल सर्वर। तो हमारी जो क्रिटिकल चीज़ है ऑर्डर प्रोसेसिंग, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ हमें नज़र आ रही है कि ठीक है, क्यू लगाने का हमें फ़ायदा नज़र आ रहा है। थर्ड इज रिलायबिलिटी क्वालिटी एट्रीब्यूट। द कस्टमर एंड ऑर्डर सिस्टम्स आर अनअवेलेबल। अगर ये दोनों अनअवेलेबल होते हैं तो क्या होगा? इफ आइदर फेल, ऑर्डर प्रोसेसिंग हॉल्ट्स एंड अलर्ट्स आर सेंड टू द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर सो दैट प्रॉब्लम कैन बी फिक्स्ड। यानी हम ये कह रहे हैं कि जी या तो ये फेल हो जाता है तो ऑर्डर प्रोसेसिंग फेल हो जाएगी हमारी, रुक जाएगी, उधर ही हॉल्ट हो जाएगी जब तक ये टेक्निकली चीज़ें रिजॉल्व नहीं होती। हमें सिस्टम एडमिन को बताना पड़ेगा कि वो इस मसले को हल करे, अदरवाइज खामोशी है। क्लाइंट ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। इसी तरह ऑर्डर सिस्टम के साथ भी अगर ये फेल हो जाता है तो आप ऑर्डर ही नहीं प्लेस कर सकेंगे। अगर ये फेल हो जाता है तो वैलिडेट नहीं कर सकते आप। ये फेल हो जाता है तो ऑर्डर ही प्लेस नहीं करेंगे तो आगे काम नहीं चलेगा हमारा। तो ये तो इट मीन्स दैट यहाँ पे देयर इज सम रूम फॉर अस कि हमारी ऑर्डर प्रोसेसिंग जो है वो कुछ हद तक हम इसको हैंडल कर सकते हैं। देखते हैं कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो पॉसिबल इम्प्रूवमेंट्स इन आवर ऑर्डर सिस्टम्स आर दैट रिलायबिलिटी सिनेरियो को हम कहते हैं कि ये हम इम्प्रूव हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये रिलायबिलिटी सिनेरियो था, हमारा ख्याल है कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है ताकि हमारा बिल्कुल सिस्टम बैठ ही ना जाए, सारा हर चीज़ रुके ना। तो इम्प्रूवमेंट क्या हो सकती है? एन ऑर्डर कैन नॉट बी प्रोसेस्ड until it has been successfully validated, so the response from the customer system is necessary. If it is unavailable, processing can't continue. अब जहाँ तक वैलिडेशन की बात है तो वैलिडेशन करनी ज़रूरी है। अगर वैलिडेशन हमने ना की तो फिर तो हमें आगे नहीं चलना चाहिए। इसलिए हम इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते कि कोई ऐसा ऑर्डर आगे ऑर्डर सिस्टम में डालें जो कि पहले वैलिडेट ना हुआ हो। तो एज फार एज वैलिडेशन इज कंसर्न्ड, we can't do anything. We have to stop the processing if validation system fail. ठीक है। on the other hand, the order system is a different matter, क्योंकि order system जो है वो सारा internal हमारा mechanism है, इसमें वो इशू नहीं है। so here we can use an asynchronous communication to better handle it। क्योंकि अगर हम asynchronous communication यहाँ पे कर देते हैं तो अगर ऑर्डर सिस्टम फेल हो जाता है तो हम क्यू के अंदर वो अपना इन्फॉर्मेशन रख लेंगे, और ये है कि ऑर्डर प्लेसमेंट थोड़ी सी डिले हो जाएगी, लेकिन ऑर्डर एक दफ़ा हमारे पास आ ज़रूर जाएगा। ऑर्डर हमारा हमारा वो कम से कम क्लाइंट से हम ऑर्डर ले लेंगे, आगे प्रोसेसिंग थोड़ी सी डिले हो जाएगी हमारी, अगर हम यहाँ पे कोई एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर लें तो। So a store could just write to the persistent queue and order processing can continue. तो another component could be introduced. इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा? We can introduce another component to create an asynchronous connection with the system to read the order from the queue and add details to the order system. This solution is more resilient to the failure as order system can be unavailable but order processing can continue. तो ये अब हम ये आपको मैं अब वही आर्किटेक्चर है, आई एम डिपिक्टिंग इट इन विद UML कंपोनेंट डायग्राम। चीज़ें सारी वही हैं। ये न्यू ऑर्डर डेटाबेस है, फिर ये ऑर्डर प्रोसेसिंग वाला कंपोनेंट है, और फिर ये कस्टमर सिस्टम है, ये ऑर्डर सिस्टम है, मेल क्यू कंपोनेंट, सेंड ईमेल कंपोनेंट, मेल सर्वर कंपोनेंट। ये हमने एक एडिशनल कंपोनेंट यहाँ पे ऐड कर दिया है। यहाँ पे ऑर्डर प्रोसेसिंग के कंपोनेंट के अंदर बेसिकली वापस मैं जाके अगर आपको बताऊँ,
जो ऑर्डर सिस्टम कंपोनेंट बनाया है हमने, उसके ये तीनों चीज़ें हमने उसके अंदर डाल दी हैं, ऑर्डर इनपुट, वैलिडेट और स्टोर। ये दीज थ्री कंपोनेंट्स हैव बीन प्लेस्ड विद इन ऑर्डर सिस्टम कंपोनेंट्स। ठीक हो गया, ये हमने किया है यहाँ पे। ये तीनों ऑर्डर प्रोसेसिंग के अंदर आ गए हैं। अब नीचे रह गया कस्टमर सिस्टम, जो कि ऑलरेडी हमारा एग्जिस्टिंग कंपोनेंट है, और ऑर्डर सिस्टम भी एग्जिस्टिंग कंपोनेंट है, मेल सर्वर एग्जिस्टिंग कंपोनेंट है, एंड ये एडिशनल कंपोनेंट हमने डाल दिया, क्यू डाल दिया बीच में हमने, ताकि अगर ये फेल हो जाता है तो कम से कम क्यू के अंदर तो हम ऑर्डर प्लेस कर दें, ऑर्डर वेस्ट ना हो हमारा, उसे हम बाद में यूज़ कर सकें। और अगर ये जैसी दोबारा आता है तो क्यू से डेटा फैच कर लेगा। और बाकी चीज़ें वही, हमारा क्यू पहले लगाई हुई थी हमने, अभी भी सेंड मेल कंपोनेंट और मेल सर्वर कंपोनेंट है। आई होप दिस स्ट्रक्चर इज क्लियर। जो आर्किटेक्चर मैंने यूएमएल में डिपिक्ट किया है, इट इज़ क्लियर। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? पीछे वाले के साथ रिलेट कर लिया आपने, जो पहले मैं डिस्कस करता आ रहा हूँ? जी सर। जी सर, ठीक हो गया, गुड हो गया। अच्छा, इसी अब यूएमएल में हमारे वी हैव सम फ्लेक्सिबिलिटी इन डिपिक्टिंग our architecture. Generally, we use component diagram for depicting our components, overall structure of our architecture. तो यहाँ पे हमें देखें, हमने एक सॉकेट बॉल नोटेशन यूज़ कर रही हैं, which is basically combination of required and provided interfaces. तो चीज़ वही है, लेकिन के दरमियान में हमने इंटरफेसेस डिपिक्ट कर दिए हैं टू मोर एलेबोरेट, कि जी क्योंकि इंटरफेसेस जब हम डिपिक्ट कर देते हैं, इसका मतलब है कि हम डेटा फॉर्मेट को फिक्स कर रहे हैं बिटवीन द कंपोनेंट्स, क्योंकि इस इंटरफेस को फॉलो करना पड़ेगा ऑर्डर प्रोसेसिंग को भी और मेल क्यू को भी। आपस में कम्युनिकेट करने के लिए दे हैव टू फॉलो द इंटरफेस विच हैज़ बीन डिफाइंड। तो इंटरफेसेस का डिफाइन करने का ये फ़ायदा हो जाता है। इसी तरह हम फर्दर भी इसको और ज़्यादा वो कर सकते हैं, एलेबरेट कर सकते हैं बाय मेकिंग यूज ऑफ द पोर्ट्स। अब इसके आपके अंदर पोर्ट्स नजर आ रही हैं, तो पोर्ट्स भी स्पेसिफिक टाइप की होती हैं। इसका मतलब है कि जब हम पोर्ट यहाँ पे लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि दिस पोर्ट शुड बी ऑफ द टाइप ऑफ इंटरफेस। तो उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट, ये पोर्ट हमें ये बता रही होगी कि जी ये पोर्ट जो है वो इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी या उसको फॉलो करेगी। तो जहाँ भी पोर्ट्स आ गए हैं, पोर्ट्स का ये कॉन्सेप्ट आ जाता है। यहाँ पे जैसे लिख दिया राइट ऑर्डर, तो पोर्ट का नाम दे दिया, इसका मतलब है कि इट हैज़ टू फॉलो द सिंटैक्स ऑफ राइट ऑर्डर डेटा फॉर्मेट, और ये इसका जो टाइप होगी ये वैलिडेट ऑर्डर की टाइप होगी, और ये गेट ऑर्डर की टाइप हो जाएगी। तो ये टाइप्स हम स्पेसिफाई कर सकते हैं बाई स्पेसिफाइंग द पोर्ट्स। अब हो सकता है अंदर इसके अंदर कोई स्पेसिफिक क्लासेस पड़ी हों, उनकी अपनी वाली टाइप हो, वैलिडेट ऑर्डर, राइट ऑर्डर। So that's why for specifying types of communication we make use of ports. अब ऑर्डर प्रोसेसिंग कंपोनेंट है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग कंपोनेंट का। एंड दिस इज यू कैन से ऑर्डर प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स का इंटरनल स्ट्रक्चर है कि ऑर्डर प्रोसेसिंग कंपोनेंट में देयर आर 4 क्लासेस। वन इज क्यू राइटर क्लास, स्टोर क्लास, वैलिडेट क्लास, and order reader class. So these are parts. अब UML हमने पढ़ी है, तो जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर शो करते हैं तो we call these as parts. These are basically instances of queue writer, instance of store, instance of validate, and these are interacting. Order reader is interacting with all the 3 other classes, जबकि ये आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रही। इन तीनों के साथ ये सेंट्रल जो कंपोनेंट है ये इंटरेक्ट करेगा। अगर हम थोड़ा ज़्यादा एलेबरेट भी इसका वर्जन बना सकते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर का। अगेन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपोनेंट डायग्राम, दैट देयर इज ऑर्डर रीडर का इंस्टेंस है OR, क्यू राइटर का इंस्टेंस है QW, स्टोर का इंस्टेंस है ST, वैलिडेट का इंस्टेंस है VL।
तो दीज आर बेसिकली रोल्स, हम इसको रोल कहते हैं, QW रोल। अब इनकी फर्दर पोर्ट्स हैं, तो गेट ऑर्डर पोर्ट से डेटा इसके पास आएगा और ये वैलिडेट करेगा, तो वैलिडेट ऑर्डर को पोर्ट को जाएगा जहाँ से आउटसाइड जो इसके आगे कम्युनिकेशन होगी। फिर स्टोर के थ्रू ये राइट ऑर्डर पोर्ट पे जाएगा और इस पोर्ट से आगे फिर ये पोर्ट कनेक्टेड है आउटसाइड ऑफ दिस कंपोनेंट। इसी तरह फिर जब ये प्रोसेसिंग हो जाएगी तो फिर ये डेलीगेट करेगा टू द राइट कंफर्मेशन पोर्ट। तो ये पोर्ट के नाम स्पेसिफाई किए जाते हैं UML में, ताकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है ऑफ द डिज़ाइन दैट शुड बी एनहेंस्ड। सिमिलरली जब हम आर्किटेक्चर बनाते हैं तो हम उसका बिहेवियर भी डिपिक्ट करते हैं। तो बेसिकली ये जो शो कर रहा है ये ऑर्डर प्रोसेसिंग में 4 हमने पार्ट्स बताए हैं। ये आपस में इनका बिहेवियरल जो इनका इंटरेक्शन है वो कैसे होगी। So that can be depicted with the help of sequence diagram. ये order reader class है, it will read the data from once new order will be received, then it will send it to the validate component for validation, and validation वाला जो है वो customer system को interact करेगा कि जी ये नया order आया है, इसको validate करना है। सक्सेस हो जाएगी तो ये वापस इसको आ जाएगा। इसमें रिटर्न लाइन नहीं डली हुई, ठीक है, रिटर्न लाइन ऑप्शनल होती हैं सीक्वेंस डायग्राम में। अगर ये सक्सेस इज इक्वल टू वैलिडेट लिख दिया, इसका मतलब है कि रिटर्न सक्सेस होगा। फॉर एग्जांपल अगर ये न्यू ऑर्डर प्लेस कर दिया है तो सक्सेस रिटर्न होगा। अगर हम सक्सेस इज इक्वल टू लिख दें तो इसका मतलब है रिटर्न लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, रिटर्न होगा सक्सेस या ट्रू रिटर्न होगा। फिर न्यू ऑर्डर प्लेस करने के बाद ट्रू रिटर्न यहाँ पे होगा तो ये फर्दर ट्रू रिटर्न करेगा यहाँ पे। इसके बाद अगला स्टेप आ गया स्टोर में। पहले वैलिडेशन हो गई, उसके बाद स्टोर को आप स्टोर ऑर्डर का मैसेज पास कर रहे हैं स्टोर को, और स्टोर इन टर्न ये क्यू जो हमने नई लगाई है यहाँ पे ये उसको राइट क्यू में मैसेज भेज देगा। एंड दिस इज उसके बाद इसका काम ख़त्म है। इसके बाद फिर तीसरा काम जो करना है, हमने राइट क्यू को मैसेज भेजना है कि एक्नॉलेजमेंट ऑर्डर सक्सेस, एक्नॉलेज करना है यूज़र को कि जी आपका ऑर्डर सक्सेसफुली लॉग हो गया है। तो ये ऑर्डर क्यू को हम भेजेंगे और ऑर्डर क्यू फिर आगे मेल क्यू को भेज देगा। सो दिस हाउ दीज ऑल कंपोनेंट्स आर गोइंग टू इंटरेक्ट। तो अगर ये आप सीक्वेंस डायग्राम दे दें, स्ट्रक्चर दे दें किसी भी डेवलपर को, देन डेवलपर शुड बी एबल टू इम्प्लीमेंट इट इन एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज। अगेन डिप्लॉयमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द कंसर्न। तो डिप्लॉयमेंट को भी हम कंसीव कर सकते हैं, हम नोड्स लेवल पे प्लान कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी एक ऑर्डर सर्वर का हमारा एक नोड होगा, एक नोड हमारा डेटाबेस का होगा, एक नोड हमारा कस्टमर सिस्टम का है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है पहले से ही, एक हमारा ऑर्डर सिस्टम का नोड है ये भी हमारा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमारे जो नए कंपोनेंट आ रहे हैं, एक ये वाला नोड आ रहा है, एक हमारा ऑर्डर सिस्टम का नोड आ रहा है, एक हमारा MOM सर्वर का नोड आ रहा है जिसके अंदर 2 क्यूज इंप्लीमेंट करेंगे। एक ऑर्डर क्यू, क्योंकि 2 क्यू हमने हमारे आर्किटेक्चर में 2 क्यूज हैं, तो दोनों क्यूज इंप्लीमेंट करेगा हमारा MOM सर्वर, और इसी तरह मेल सर्वर हमारा सेपरेट है, 2 कंपोनेंट इसके अंदर होंगे। ठीक हो गया। ऑर्डर सिस्टम के अंदर भी 2 कंपोनेंट है, एक कस्टमर सिस्टम और CRM, ये 2 कंपोनेंट इसके अंदर आ जाएंगे, और ऑर्डर सिस्टम के अंदर 2 कंपोनेंट आ जाएंगे। सो दिस हाउ वी कैन प्लान आवर डिप्लॉयमेंट अमंग डिफरेंट नोड्स। फिर इसमें कम्युनिकेशन भी बताई जा रही है कि जी ये इनकी कम्युनिकेशन JDB बेस्ड होगी, ये कम्युनिकेशन SOAP बेस्ड होगी, and that's this how we can make our deployment view as well. So I hope it was an interesting case study. Now one step is missing, that is prototyping. एक हमने कहा था कि जी हम मेंटली पूरा एक्सरसाइज करते हैं, स्टिमुलस सोचते हैं, फिर हम रिस्पॉन्स बनाते हैं, और दिस हाउ वी डू ऑल मेंटल एक्सरसाइजेज। लेकिन हर जगह मेंटल एक्सरसाइज काम नहीं करती, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको एग्जीक्यूट करके देखनी पड़ती हैं कि वाकई ये जो हमने कंसीव किया है, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, कोई ऑफ द शेल्फ कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं,
आपको कंपनी के क्लेम के मुतालिक श्योर नहीं है कि कंपनी का क्लेम ठीक है कि नहीं है, या हमारी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी के साथ कोई कंपोनेंट इंटीग्रेट हो सकेगा नहीं हो सकेगा, तो आपको कुछ ना कुछ टेस्टिंग या प्रोटोटाइपिंग भी करनी पड़ती है आर्किटेक्चर लेवल पे। लेकिन वो प्रोटोटाइपिंग इतनी कम से कम होनी चाहिए इम्प्लीमेंटेशन, ताकि आपकी कॉस्ट जो है ना वो और बजट ओवरशूट ना कर जाए। इसलिए प्रोटोटाइपिंग जो है वो बहुत ही मिनिमल, जहाँ पे शक हो सिर्फ उस जगह पे करें। सो हाउ वी डू इट, सिनेरियोस कांट एड्रेस एवरीथिंग, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। फॉर एग्जाम्पल, on Friday afternoon, orders must be processed before close of business to ensure delivery by Monday. 5,000 orders arrive through various channels like web, call center, business partners, 5 minutes before close of business. अब देखें, वो कह रहे हैं कि जी 5 मिनट के अंदर क्लोज बिजनेस हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल 5 बजे, तो 5 मिनट पहले आपको एकदम 5,000 ऑर्डर्स आ जाते हैं। तो ये 5,000 ऑर्डर्स को आपने विद इन 5 मिनट्स हैंडल करना ज़रूरी है, वरना फिर हमारी एप्लीकेशन फेल हो जाएगी। तो अब ये ऐसा सिनेरियो है कि इसको आप मेंटली तो नहीं कर सकते, इसको आप एक्चुअली टेस्टिंग करनी पड़ेगी आपको कि वाकई हमारा जो भी चीज़ हमने परचेज़ किया, फॉर एग्जाम्पल डेटाबेस परचेज़ किया है या कुछ और किया है, तो क्या वो हम 5,000 ऑर्डर्स विद इन 5 मिनट्स प्रोसेस कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो इस तरह की सिचुएशन में फिर हमें प्रोटोटाइपिंग करनी पड़ती है। सो द ओनली वन वे इज टू बिल्ड समथिंग, दैट इज प्रोटोटाइप। सो प्रोटोटाइप्स आर यूज्ड फॉर आइदर फॉर प्रूफ ऑफ द कॉन्सेप्ट, हम उस प्रोटोटाइप को कहते हैं प्रूफ ऑफ द कॉन्सेप्ट प्रोटोटाइप, कि कोई कॉन्सेप्ट हमने लेकर आए, उस कॉन्सेप्ट को वैलिडेट करना है कि यार ये कॉन्सेप्ट चलेगा भी कि नहीं चलेगा। That is, can architecture as designed be built in a way that can satisfy the requirements, or your prototype can be proof of technology, कोई टेक्नोलॉजी नई आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। Does the technology, middleware, integrated application, libraries, etc. selected to implement the application behaves as expected? तो ये दो सिचुएशन हो सकती हैं प्रोटोटाइप बनाने की, एज अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट और एज अ प्रूफ ऑफ टेक्नोलॉजी। सो प्रोटोटाइपिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए हमारी? वी शुड बिल्ड मिनिमल सिस्टम required to validate the architecture. For example, an existing application shows that a queue and email systems are capable of supporting 5,000 messages in 5 minutes. For example, जैसे मैंने एग्जांपल बताई आपको पीछे, कि अब हमने ये देखना है कि ये 5,000 में जो हमारी क्यू है और ईमेल सिस्टम है, क्या वो 5,000 मैसेजेस को 5 मिनट्स में सेंड कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम एक टेस्ट प्रोग्राम बना सकते हैं दैट कॉल्स द कस्टमर सिस्टम वैलिडेशन API 5,000 टाइम्स टू सी द टाइम हाउ लॉन्ग इट टेक्स। 5,000 टाइम आप जनरेट करें डमी मैसेज और सेंड करके देखेंगे ये 5 मिनट्स में प्रोसेस हो सकता है कि नहीं हो सकता। राइट अ टेस्ट प्रोग्राम दैट कॉल्स ऑर्डर सिस्टम स्टोर API 5,000 times and see the time how long it takes. So this is what we can do. So this is what is the concept of prototyping. Some prototyping thoughts. Prototypes should be used judiciously to help reduce the risk inherent in the design. मतलब यह है कि बेदरेग इस्तेमाल ना करें प्रोटोटाइप का, हर चीज़ के लिए प्रोटोटाइप जहाँ ज़रूरी है और कम से कम कोडिंग करवाएं, क्योंकि उस पर कॉस्ट आएगी आपकी, टाइम वेस्ट होगा आपका, एंड टाइम इज मनी। इट्स द ओनली वे टू एड्रेस परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी, ईज ऑफ इंटीग्रेशन, कैपेबिलिटीज ऑफ द शेल्फ कंपोनेंट्स, दैट इज कॉस्ट। तो ये चीज़ें चेक करने के लिए आपको पास और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि आप प्रोटोटाइपिंग करें। एंड नीड टू बी केयरफुली स्कोप्ड एंड मैनेज्ड. It's very important. It should be carefully scoped and managed. Ideally, take a day or two or week or two at most. तो कोशिश तो ये हो कि 1-2 दिन में डेवलप हो जाए,
लेकिन 1 या 2 वीक से ऊपर नहीं जाना चाहिए अगर आपकी बहुत बड़ी कोई एप्लीकेशन है। तो अगर उससे ऊपर जा रहा है इसका मतलब है कि आप प्रोटोटाइपिंग नहीं कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। यूजुअली थ्रोन अवे, सो कीप देम चीप। जनरली इनको बाद में यूज़ नहीं किया जाता, तो इसलिए इसको इतनी सोफिस्टिकेशन की जरूरत नहीं है आपको। आप कमांड लाइन इंटरफेसेस बना सकते हैं, GUI वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है आपको, इस तरह काम कर सकते हैं जितना उसको सिंपल रखें। डोंट लेट देम एक्वायर द लाइफ ऑफ देयर ओन। ठीक है जी, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटोटाइपिंग थॉट्स. So let me summarize the whole lecture. It was an important lecture on iterative software design process. We saw that it is a 3-step process. First we determine architectural requirements, then we do architectural design, and then we validate it. And this whole process can be customized to small, medium, large projects, and it is adoptable with ओवरऑल प्रोसेस फ्रेमवर्क, दैट इज RUP, एजाइल, वाटरफॉल, जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर प्रोसेस डेवलपमेंट प्रोसेस हैं, इन सब के अंदर इसको यूज़ किया जा सकता है. सो इट एंड्स today's lecture and the course. I hope I have been able to convey this lecture. कोई आपको अच्छा भी लगा होगा, बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन है इसके अंदर. Or any questions or queries, please let me know. सर पेपर पैटर्न एक दफा बता दीजिए। ओपन बुक ही बनाता हूँ मैं, और कुछ पार्ट्स आपका ऑब्जेक्टिव्स का होता है, कुछ पार्ट आपका पैटर्न्स में से होगा, और कुछ आपका नीचे सारे ही, मतलब कोर्स तो सारा ही होगा. कोई स्पेसिफिक ओपन बुक होगा. मेरे ख्याल सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो यही है. ऑब्जेक्टिव भी होंगे, ये भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. और कुछ ज़हन में हो तो पूछ लें. पेपर फ्राइडे को ही है ना? यस सर। yes. ठीक है. और कोई सवाल? ये आपको आपके सीनियर्स ने भी बहुत आपके कान छान भरे हुए होंगे, आपको बताया हुआ होगा बहुत कुछ. थॉरली ब्रीफिंग आपके सीनियर से मिल चुकी होगी आपको, तो वही पैटर्न होगा जो चल रहा है. और कोई सवाल, कोई गिले शिकवे हैं तो कर लें.